Bring the action. So everybody, hi. We are at Penrose metro station. Out here we are going to be picked up by Mr. Mushtaq. He's from Peshawar, Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, and he's a great photographer. Not just photographer, he's into videography, and many of the movies which was shot by Nasir M. Khan Productions, and like Hindi and Fijian movies which are produced out here. He's the main cameraman basically. So we're going to learn some tips and tricks from him. What do you say, Sayak? Yeah, I'm very excited to learn some tricks from this person because he Yeah. obviously is So now I'll show you the what it does. yeah. So now I'll show you around. As you can see, a train is going right below us. Outland Transport. It's a very cloudy day today. It can rain anytime. Yeah, Sayak? Yeah, We need to be prepared. I've brought an umbrella as well. Good day to be out. Yeah. But still, work needs to be done. On the overbridge, the view from the overbridge is surreal, isn't it? Yeah. That side is probably will. Our house is probably that side somewhere. Yeah. And I like this tree as well. It Yeah. looks like a coniferous, some kind This of is a juniper. juniper. Yeah. Yeah, that's what I was thinking. Looks like coniferous. Yeah. Back in India, you have these deodars and the chiefs. Have you heard of them? So if you go to any hill station, if you are in lower altitudes, like say from 1,500 meters to 2,000, you get to see these kind of coniferous trees. Well, actually, conifers usually dominates medium altitudes. Yeah. In the very low altitudes, you Whereas- usually have deciduous Yeah. forests. Whereas the moment you cross 2,000 meters above that elevation, you'll find the deodars, the pines, the Christmas tree, like kind of trees. Yeah. And if you go even higher, then you find I forgot the name of those You find trees. meadows. The kind of trees which grow in Avatar. Those If you trees go you even find. higher, then there's something And called a tree line. yeah, beyond above- which no trees can actually Yes, grow. yes. And there's only small shrubs. Exactly, and exactly. Lichens And the best fine part about the meadows, Himalayas is flowers. you get to see those variations. And there it is, we have Mushtaq bhai. He has come to pick us up. और कैसे हो मुश्ताक भाई? ठीक तो हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ. व्लॉग बना रहे हैं. और क्या? अरे यार तो ये है हमारे साथ अभी मुश्ताक भाई. तो इन्होंने काफ़ी सारे फिल्म्स में शूटिंग वगैरह करी है. एंड वी आर होपिंग कि वी गेट टू लर्न सम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम हिम. कैमरा चलाना, वीडियो कैमरा शूटिंग, लाइक फिल्म्स में कैसे किया जाता है. तो मुश्ताक भाई, आप हमें ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कितने दिनों से हैं और मतलब कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली? मैं असल में इस प्रोफेशन में तकरीबन 2 यंग था जब मैं चैनल्स में जाता था और वहाँ पर देखता था लोगों को. टीवी पे भी बड़ा शौक़ था मुझे कि यार मैं एक्टिंग करूँ, किसी चैनल में जाऊँ या कोई काम करूँ. लेकिन उससे भी ज़्यादा जो शौक़ है वो मुझे फ़ोटोग्राफी, एडिटिंग वगैरह और फिल्म बनाने का, इन चीज़ का, द बैक ऑफ द सीन. अच्छा. हाँ, उसका मुझे बड़ा शौक़ था. तो वो चीज़ें मैंने इस वजह से उसके लिए मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी सारे इंटर्नशिप किए बग़ैर पैसों के. यानी 4-5 साल तक मैं कुछ भी नहीं लेता था और मैं काम करता था. मैंने चाय बनाई, पराठे बनाए, खाना बनाया, स्टूडियो साफ़ किया, लोगों के जूते साफ़ किए स्टूडियो के अंदर, सब कुछ किया. लेकिन कभी मैंने ये नहीं महसूस होने दिया कि यार मैं बड़ा आदमी हूँ या कुछ और नहीं. क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपको सिर्फ सीखना ही है. बेशक आप 50 साल के हो जाओ या 100 साल के हो जाओ, आपने इसमें आर्ग्यूमेंट करनी ही नहीं है.
क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे ख़ुद घर वाले और हमारे उस्ताद वो ये बोलते थे कि बेटा पैसा तो आप कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन जी, सबसे बिल्कुल। ज़रूरी जो है ना वो अदब है। आप अदब कमाओ, मतलब रिस्पेक्ट करो लोगों की। और रिस्पेक्ट की जो है ना, जब आप रिस्पेक्ट करोगे अपने उस्तादों की तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। तो इस तरीके से बस मैंने अपने मतलब ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। मैं एक साउंड इंजीनियर बना, मैंने काफ़ी सारे एल्बम रिकॉर्ड किए हमारे अपने इलाके के अंदर। फिर उसके बाद गानों में आया, गाने लिखता था मैं, उर्दू गाने भी लिखता हूँ और गाता भी था मैं। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं गाता, काफ़ी अरसा हो गया। तो फिर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पेशावर से। वहाँ पर हालात ख़राब थे, हालात की वजह से बस मैंने पाकिस्तान छोड़ा और मैं न्यूजीलैंड आया। और न्यूजीलैंड में भी मैंने स्टडी करी और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी किए मैंने, फ़िल्म्स वगैरह में काम किया, फ़िल्म में एडिटिंग्स वगैरह की। और उसके अलावा मैंने अभी एडमिशन लिया है फ़िल्म स्कूल के अंदर, ताकि मैं यहाँ से भी क्वालिफाइड हो जाऊँ। मैं अब भी पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि मुझे काम आता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे काम नहीं आता। मैं काम कर भी रहा हूँ प्रोफेशनली, अच्छे पैसे चार्ज करता हूँ। लेकिन क्या है, मैं कहता हूँ कि मैं काम सीखूँ, ये मेरा पैशन है और मैं सीखने के लिए किसी हद तक भी जाऊँगा। जी, और बिल्कुल। मेरी भी आप सबसे एडवाइस है कि आप सीखो जितना हो सके। ना वो तो सबसे बढ़िया बात है। वो तो अच्छा। और आपका मतलब सबसे बड़ा एडवाइस क्या है सब मतलब लोगों के लिए जो लोग मतलब किसी और प्रोफेशन में है, लेकिन मतलब जिनका हॉबीज़ इसमें है या फिर बाद में इसमें स्विच करना चाहते हैं, तो वो लोग कहाँ से स्टार्ट करें आपके हिसाब से? लाइक कैसे स्टार्ट करें? देखो लाइक जिसको जो फोटोग्राफी में पैशन है या फिर फोटोग्राफी होता है ना, वो तो नॉर्मली अगर देखा जाओ ह्यूमन नेचर के हिसाब से है ना, आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है। जी बिल्कुल। हाँ, ये जो तो है। नहीं भी पसंद करता ना फोटोग्राफी को, वो भी उसको भी फोटोग्राफी करनी पड़ती है। हाँ, ये तो बिल्कुल है ही। तो मैं इतना कहूँगा कि मतलब ये एक ऐसी फील्ड है कि ये आपको आपके जितने अपने फैमिलीज़ के काम है, मतलब फैमिलीज़ में शोज़ वगैरह होते हैं या वेडिंग होती है या दीगर पार्टीज़ वगैरह होती है, उसके लिए आप फोटोग्राफ़र को हायर करते हैं। मैं ये नहीं करता कि ना करें फ़ोटोग्राफ़र को भी हायर करें, लेकिन आपके पास अपने भी कुछ इतने स्किल होने चाहिए कि जिससे आप अपने घर का एक छोटा मोटा शूट कर सके, जिसकी वजह से आपके पैसे बच सकें। जी सही है। तो उसके लिए बेसिकली आप जो है ना, अगर आपके यार दोस्त हैं जिनको कैमरामैन है या फोटोग्राफर्स हैं, जिनके पास नॉलेज है फोटोग्राफी का या फिल्म मेकिंग का, और वो आपके बहुत अच्छे और क्लोज दोस्त हैं, आप उनके साथ बैठें, आप उनसे सीखें, आप मतलब उनके साथ जाएं, इवेंट्स के अंदर बैठें। देखो, आप यूनिवर्सिटी से तो आप सीखेंगे ही, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल मिस्टेक नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, लिहाजा आप वो तो है ही। प्रैक्टिकली जाए। देखो, मैं जब गाना फर्स्ट टाइम शूट कर रहा था तो मुझे भी लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातें करी। उन्होंने कहा यार ये मुश्ताक तो गाने को ख़राब कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई ऐसा शख्स दिखा दो जिसने अपनी माँ के पेट में सीखा हो और यहाँ पर आकर उसने ये सारा काम किया हो ना। हाँ, वो तो है तो मैंने बोला सब ने ही गलतियाँ की हैं, सब ने एक्सपेरिमेंट किए। विदाउट एक्सपेरिमेंट यू कांट डू एनीथिंग। आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक कि ये वैक्सीन आ रही है, इसका भी जब तक हम पर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो है। इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स करो, अपने मोबाइल से करो। यूट्यूब तो अब यूट्यूब ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है हाँ बिल्कुल, यूट्यूब कि में यूट्यूब में आप यूट्यूब ने हर पूरा बला अलग दुनिया ही खोल दी है। पूरी दुनिया ये तो खोल है दी ही। है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियाँ अब सिर्फ डिग्रियाँ दे रही है और कुछ भी नहीं दे रही है, हाँ, कुछ वो तो सिखा है। नहीं रही है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद लेवल 5 के लिए एडमिशन लिया है। मैं लेवल 7 के लिए क्वालिफाइड हूँ, लेकिन लेवल 5 इसलिए मैंने एडमिशन लिया क्योंकि जिस कैंपस के अंदर लेवल 7 लेवल 6 चल रहा है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। अच्छा अच्छा। तो ट्रैफिक होती है, तो मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो लेट हो जाऊँगा। तो इसलिए मैंने नज़दीकी अपने लिए एक वो किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीखो तो यूट्यूब से, लेकिन डिग्री लेने जाओ। अगर आपसे कोई डिग्री, देखो अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपसे कोई डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। कौन हो। लेकिन अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली दे विल आस्क यू, मतलब कहाँ से आपने ये सीखा है। तो आई विल एडवाइस टू एवरीबॉडी, चाहे वो किसी भी बिजनेस, किसी भी उस शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, शोबे से मुराद किसी भी स्किल्ड में उसके पास कोई भी स्किल्ड हो, उनको चाहिए कि वो अपना बिजनेस करे। अच्छा, तो आज की गुफ्तगू का लास्ट सवाल
और वो ये है कि जो बंदा स्टार्टिंग में एकदम व्लॉग्स मतलब करना स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कौन से कैमरे से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे एक लाइक मोबाइल हो गया, उसके साथ कैमरा एनहेंसर हो गया, फिर थोड़ा बहुत माइक हो गया, तो उसमें आपका मतलब रिकमेंडेशन क्या है कि दिस इज़ द मिनिमम, आपको मतलब ये चीज़ें बाई करके इससे स्टार्ट करो, फिर बाद में आप एडवांस कर करो, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे लोग, उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनका आप जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग ज़्यादा मतलब कॉस्टली चीज़ें खरीद नहीं सकते, हाँ, मतलब स्पेयर पार्ट्स लगा के कुछ कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह, तो आपका मतलब वो बेसिक पैक जो है वो आप क्या रिकमेंड करते हैं? बेसिक पैक जो है ना, वो मतलब व्लॉग करने के लिए, व्लॉग करने के लिए सबसे बेहतरीन जो फ़ोन है वो है गूगल पिक्सल 2, गूगल पिक्सल 3। अच्छा। गूगल पिक्सल का जो मोबाइल तो उन्होंने बना दिया, गूगल पिक्सल का जो कैमरा है वो बहुत अच्छा कैमरा है व्लॉग के लिए। फ़ोन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो फ़ोन है गूगल पिक्सल वो एक यूनिक फ़ोन है, लेकिन वो विल कॉस्ट यू मतलब $2000 से $2500 तक आपको कॉस्ट करता है। अब तो आईफोन 12 प्रो में कल देख कर आया हूँ, जो बहुत ही प्यारा फ़ोन है। अच्छा। हाँ, वो इजी टू मतलब वो जो है ना किसी भी कैमरे को बीट कर देगा। मतलब सोनी A7 III के मुकाबले का, सोनी A7 III की बॉडी तकरीबन $3500 की बॉडी है। फिर उसके आगे जो लेंसेस लगते हैं, अगर आप कोई अच्छा लेंस लगाते हो तो मतलब सिग्मा के अच्छे लेंस लगा लो, हार्ड के लेंसेस, तो स्टार्टिंग लेंस ही तकरीबन $1500 का तो वो लेंस जो है ना, वो लेंस 1500 से लेकर 2000, 3000, $4000 तक वो लेंसेज है। और मोबाइल के लिए बेस्ट मतलब कैमरा एनहेंसर लाइक लेंस एनहेंसर? मोबाइल के लिए देखो, मोबाइल के लिए अगर आपके पास देखो अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन भी नहीं है मतलब काफ़ी $500 का फ़ोन है, आपको $400 का, जैसे कि सैमसंग का, हाँ, सैमसंग का A20 हो गया, उसके अलावा A50mm हो गया, तो इसके लिए आप मतलब वो एक एक्स्ट्रा लेंसेज आते हैं, वो आप ले सकते हो। इसमें 50mm होता है, 24mm होता है, 15mm होता है, तो वो उस लेंसेज को आप देखो कि आप कितना दूर शूट कर रहे हो और कितना पास शूट कर। अगर आप पास शूट करना चाहते हो तो आप मतलब एक लेंस वो लो जो 56mm है, मेरे ख्याल में शायद ये 50mm है, तो वो क्लोजअप में शूट करेगा। फिर वाइड के लिए आप 24mm या 16mm का वाइडर लेंस ले लो, उनका पूरा पैक आता है लेंसेज का। आप गूगल में देखो कि काफ़ी सारे, मैंने यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन मैं वॉच करता हूँ उसके बारे में। मेरे पास पड़ा भी एक लेंस जो मैंने सिर्फ इंसेक्ट फोटोग्राफी के लिए लिया था। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हाँ, इंसेक्ट फोटोग्राफी इनको पता है। हाँ, लेवल का आदमी। हाँ, तो वो इंसेक्ट फोटोग्राफी के हवाले से इंडियन एक लेंस बनाया मेरे ख्याल में शायद। अच्छा, इंसेक्ट फोटोग्राफी के लिए? हाँ, इंडियन एक लेंस उन लोगों ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लेंस है वो। अच्छा। तो मैं शायद उसको देखूँ, मैं आपको फिर बताऊँ, तो उससे बड़ी प्यारी फोटोग्राफी होती है। ये देखो, वीडियो चेक करो इसकी। तो वीलॉग्स के लिए फ़ोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। किसी कैमरे को वो नहीं कर, लेकिन अगर आप कोई गाने का शूट कर रहे हो, गाना भी आप आईफोन पे शूट कर सकते हो। जी बिल्कुल, अगर आप करना चाहो। जी बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ राब्ता करने के लिए।